Hello, everyone. We welcome you to the International Fab Talks. We have had wonderful guests joining us from different parts of India and the world. We love to hear them share their journey with us. We'd love to hear their story, what we could learn from their journey. We learn a lot by observing one another. And today we have a wonderful friend who's joining us all the way from Delhi. He's a music master in a great school. He's been a professional, very focused on teaching music and learning music as well. He loves to learn and teach it to the students. He's been in this zone of music for a very long time. We'll get to know more about the story of our celebrity guest today. He's none other than Mr. Mukesh Kumar. He's here with us to share his journey and inspire us in the right way. Join us, friends, to welcome our celebrity guest. He's none other than Mr. Mukesh Kumar. Hello, sir, and welcome to the session. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for joining the session. बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और सभी सुनने वालों को भी बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से, और बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. I go ahead and share your profile and we begin the session. जी Yes, sir. Thank you very much. So, dear friends, I just go ahead and share sir's profile. As I already mentioned, he is from the music side and he is connected with song and with music. He loves, that is his passion. He has changed his passion into a profession. So, that's really nice. So, as I earlier mentioned, our guest is none other than Mr. Mukesh Kumar. He is a primary music teacher and a great professional in whatever he does. And he is appointed presently in Kendriya Vidyalaya, located in R.K. Puram, Delhi, Sector 4. And friends, now it's the time to know about this personality as to how he became a music teacher, why is he interested in singing, and what does he get when he shares his voice with the world. What is the pleasure and the passion that he has within him? How we could also find our passion and convert it into a profession. God willing, everything will really work out for all of us, just the way it has worked out for Mr. Mukesh Kumar. मुकेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए वक्त निकाले हैं अपने जिंदगी के बारे में, अपने म्यूजिक के बारे में, अपने गानों के बारे में हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी ये जानना चाहेंगे, आप एक प्रोफेशनल सिंगर, एक प्रोफेशनल म्यूजिक टीचर कैसे बने? ये कहानी कहाँ से शुरू हुआ और अभी आप यहाँ पर आ चुके हैं, फिलहाल के लिए आप केंद्रीय विद्यालय में काम कर रहे हैं भाई साहब, तो ये सफर कैसा था? ओवर टू। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया, और मैं आपके थ्रू बाकी लोगों से जुड़ पाऊंगा और सबको अपने बारे में जो भी जानकारी है वो दे पाऊंगा। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक रही बात म्यूज़िक की, तो मैंने जो म्यूज़िक का जो मेरा सफ़र है, वो आप ये कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड भी है थोड़ा सा, क्योंकि भगवान की तरफ से ये देन होती है किसी को भी। जो भी इंसान म्यूज़िक या कोई और किसी भी कला में जाना चाहता है, या कोई किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, तो उस पर सबसे पहले भगवान की कृपा होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जब मैं 5-6 साल का था, तब से मैंने गाना स्टार्ट किया। सिर्फ मैं उस समय आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ गुनगुनाता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट सिखाने वाला था नहीं, और कोई फैमिली में भी किसी ने म्यूज़िक नहीं सीखा। तो मैं, जो हमारे यहाँ पर उस टाइम गाने लॉन्च होते थे, जो उस टाइम कैसेट का ज़माना था, तो री कैसेट जो आती थी उनको सुन सुन के फिर मैं उनको गानों को याद करता था, उनको लर्न करता सॉन्ग को लर्न करता था, और फिर मैं उसको गाता था। और जब मैं ये गाता था, तो लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। हालाँकि मैं अभी भी इस बात को मानता हूँ कि मैं अभी भी उस तारीफ़ के काबिल नहीं हूँ, लेकिन लोग उस तारीफ़ करते थे, तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम कि मुझे संगीत में जाना चाहिए। उसके बाद एक्चुअली मैं बचपन से थोड़ा-सा, मेरी साइट की प्रॉब्लम है, तो मैं जब 1 डेढ़ साल का था, तो उस समय कुछ बीमारी के चलते कोई इंजेक्शन मुझे रिएक्ट कर गया था, रिएक्शन हो गया। तो उसकी वजह से मेरी जो है आई साइट वो चली गई। तो इसलिए मेरे मेरे लिए गाँव में पढ़ना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहाँ पे जो प्रिंट की जो बुक होती है वो पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब दिखाई नहीं देगा तो आप कैसे पढ़ेंगे? तो उसके लिए एक ब्रेल लिपि होती है। हमारे जो उसके जो फाउंडर हैं लुईस ब्रेल, उनका भी जन्मदिन था 4 जनवरी को, वो भी हमने सेलिब्रेट किया है। और
4 जनवरी 1809 को वो पैदा हुए थे। फ्रांस के रहने वाले थे, पेरिस के नियरेस्ट उनका कोई गांव था। तो वहां से उन्होंने जो है इस ब्रेल लिपि का आविष्कार किया जिसके थ्रू हम पढ़ सकें। तो मैं 2003 के आसपास, तब मैं 11 साल का था, एक ब्लाइंड स्कूल है अमृतसर में, अभी भी स्थित है वो, इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, लोहगढ़ गेट। तो वहां पर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, और वहां पर पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी सिखाते थे। तो हमारे जो गुरुजन हैं, जो जिनसे हमने संगीत सीखा, जिससे शुरुआत की, सबसे पहले जो जिनसे मैंने सीखना शुरू किया, हारमोनियम उन्होंने मुझे सिखाया थोड़ा थोड़ा बजाना, और साथ में कुछ राग सिखाए, कुछ सरगमें सिखाई, कुछ भजन सिखाए। वो सैमुअल मसीह सर, सैमुअल मसीह उनका नाम है। वो बहुत ही टैलेंटेड हैं, और फ्लूट भी प्ले करते थे, गाना बहुत अच्छा गाते हैं। और अभी भगवान उनकी लंबी उम्र करे, हम ऐसी कामना करते हैं। तो उनसे हमने सीखना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर वहीं पर जब हमने पहला साल उत्तीर्ण कर लिया, यानी कि हम फर्स्ट ईयर में पास हो गए म्यूजिक की क्लास में, तो सेकेंड ईयर से हमने जो संगीत का सफर है वो स्टार्ट किया। हमारे वहाँ पे जगमोहन तनेजा जी एक टीचर थे, हैं अभी भी, सॉरी। तो उन्होंने जो है हमें आगे की शिक्षा दी, आगे की तालीम उन्होंने हमें संगीत की दी। उनके पास हमने 4-5 साल सीखा, और वो इतने प्यार से सिखाते थे कि हमारा मतलब जो इंसान म्यूजिक से रिलेटेड ना भी हो, उसको भी सीखने का मन कर जाता था, इस तरीके से सिखाते थे। और जब हम सुबह सुबह रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो हमारे लिए वो चाय बना के लाते थे, गुड़ की चाय, अपना सर्दियों में गुड़ की चाय और गर्मियों में चीनी वगैरह डाल के, ऐसे बहुत अच्छी चाय बना के हमें हमें पिलाते थे। तो इस तरह से हमने गुरुजनों से सीखा धीरे धीरे। फिर उसके बाद वहाँ पे एक मस्तरम सर थे। मस्तरम सर अभी भी हैं, लेकिन उस स्कूल में नहीं है, वो दूसरे स्कूल में चले गए हैं। वो उनसे भी हमने कुछ समय म्यूजिक सीखा। फिर एक रोमी सर हैं, उनसे भी हमने कुछ समय म्यूजिक सीखा। तो वो अभी जो मस्तरम सर हैं वो पंजाब गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, और रोमी सर चंडीगढ़ चंडीगढ़ के अंदर जो स्कूल वो है, एमआर का स्कूल है चंडीगढ़ में, वहाँ पे वो म्यूजिक टीचर हैं। और उनके द्वारा ही हमें संगीत की बेसिक शिक्षा, जिसका आपने सवाल पूछा था, मेरा जवाब काफी लंबा हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो वो हमारी स्टार्ट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने सभी का नाम शेयर किया है यहाँ पर। आप हमें ये मालूम समझ में आती है कि आप सबका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और सभी को जी याद करने में आप उनको एक feel good, you feel good when you share the names of those people who have helped you. That's really nice. बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को अपने गुरुओं का नाम और या उनका जो काम हमारे जिंदगी में जो उनका आशीर्वाद है उसके बारे में हम बात करना है और शेयर करनी है। आपने बड़ी अच्छी तरीके से शेयर किया है। जिन जिन गुरु गुरु आपके जिंदगी में आपके सफलता का कारण बन चुके हैं उसके बारे में आपने शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी हम ये जी जानना जी। चाहेंगे, आप एक टीचर कैसे बने, म्यूजिक टीचर कैसे बने, वो सफर कैसा था? अभी आपका शिक्षण हो चुका है, आपका ट्रेनिंग हो चुका है, रियाज हो चुका है, बहुत सारे लोग जो आपकी जिंदगी में आए गुरु लोग, तो वो सभी गुरुजी लोग आपके सहायता करे और ट्रेनिंग सही तरीके से दिए। उसके बाद में आप अपना सफर आगे कैसे लेके गए, एक अच्छा म्यूजिक टीचर कैसे बने? क्या आसान था वो, क्या अ, कोई कुछ डिफिकल्ट था? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी भी मैंने म्यूजिक सीखा नहीं है, अभी मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ। और जैसा म्यूजिक का चलन है, इस तरह से मुझे लगता है कि ये ताउम्र हम सीखते रहेंगे। जिंदगी भर का सफर होता है इसको सीखना। और दूसरी बात आपने कही कि मैं म्यूजिक टीचर कैसे बना, तो फिर मैंने आपको बताया, मैंने 10वीं तक वहाँ पे पढ़ाई की अमृतसर स्कूल में। उसके बाद मैं आगे पटियाला आ गया था। पटियाला में मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ पे एक यशपाल सर हैं और गुरविंदर मैडम, ये दो टीचर्स थे जो जिन्होंने मुझे आगे की थोड़ी सी तालीम म्यूजिक की दी। और उनके साथ रह के मैंने
वहाँ पर खूब सारे मेडल्स भी जीते। वो जब पिछला इंटरव्यू हमारा हुआ था उसमें बारे में भी मैंने उसके बारे में बताया था थोड़ा सा। तो हमने जो है उसमें स्टेट लेवल के कुछ मेडल्स जीते, कुछ रीजनल लेवल के, कुछ हमारे लोकल लेवल के जो कंपटीशन होते थे उसमें। तो अ, उनके साथ हमारा ये सफ़र चलता रहा। उसके बाद ग्रेजुएशन करते करते मुझे उस्ताद अली अकबर साहब वहाँ पर प्रोफेसर हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में, उनका अम, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत गाना मैंने और आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैं आ गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने यहाँ भी काफ़ी गुणीजन लोग हैं, उनसे सीखा। हमारे ओजेश प्रताप सिंह जी प्रोफेसर थे यहाँ पे, अभी भी हैं सॉरी। और इसके अलावा अनन्या कुमार डे सर हैं, हरीश तिवारी सर हैं, और हमारे शैलेंद्र गोस्वामी सर हैं। इनसे सबसे हमने तालीम ली है। और उसके बाद यहाँ से मैंने एमए और एमफिल जब की, तो उसके बीच में मैंने जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था। तो मेरा मन ये था कि मैं पीएचडी करूँगा, और पीएचडी करने के बाद ही कोई भी पोस्ट ज्वाइन करूँगा। तो 18 में 2018 में अगर हम बात करें तो हमारे ये जिनसे अभी मैं सीख रहा हूँ गुरुजी डॉक्टर दिनकर शर्मा, वो मुझे 2018 के शुरुआत में लगभग मिल गए थे। उनसे अभी भी मेरी तालीम चल रही है। तो 2018 के मिडल में अक्टूबर में ये केवीएस की कुछ पोस्टें आई थी म्यूजिक टीचर के लिए। तो मैंने ये सोचा कि मैं भी इसमें ट्राई करता हूँ, क्योंकि इतना आसान होने वाला नहीं है। कुछ भी हम जब अचीव करते हैं तो उसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की और एग्ज़ाम दिया। तो भगवान की कृपा से वो अ, सफल रहा। उसमें मैंने उसको क्लियर कर लिया एग्ज़ाम को। उसके बाद वो उसका इंटरव्यू हुआ था फरवरी 2019 में, वो भी मैंने क्लियर कर लिया। तो उसके बाद फिर ये 2019 के मार्च में 25 मार्च 2019 को मैंने केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया था पठानकोट में। सबसे पहली जो मेरी पोस्टिंग थी केवी नंबर 2 पठानकोट, आर्मी एरिया के अंडर अंदर है वो स्कूल। और फिर 2019 से लेके 2023 अगस्त तक मैंने वहाँ पे जॉब की है। और अगस्त 2023 में मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली में हुआ। तो अभी मैं आर के पुरम सेक्टर 4 में नौकरी कर रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है। जी जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्या आप मिस करते हैं जो पठानकोट में आप काम कर रहे थे उस स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय जो, वो स्कूल सेक्टर 2 आपने कहा था शायद, राइट? नहीं, केवी नंबर 2 मैम। केवी नंबर 2। तो अभी जी। यहाँ पर आ चुके हैं, तो आपके स्टूडेंट्स आपको मिस करते होंगे या आप स्टूडेंट्स को मिस करते होंगे, अपने स्टाफ को, एम आई राइट? वहाँ पे मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं स्टाफ की अगर बात करें तो, वो अभी भी मेरे साथ टच में हैं, और उनसे बातचीत होती है। और जब भी पठानकोट जाना होता है, क्योंकि दीनानगर मेरा होम टाउन है, तो दीनानगर के जस्ट साथ में, मतलब लगभग 30-35 किलोमीटर के अंदर अ, ही पठानकोट है, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं वहाँ जब भी जाता हूँ, वहाँ पे मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स अभी भी मुझे मिलते हैं। और टीचर्स की जहाँ तक आपने बात की, एक हमारी वहाँ की नर्स मैडम थी, उनसे बहुत अच्छी अ, मतलब बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, और अभी भी उनसे बात होती है। एक हमारे और म्यूज़िक टीचर थे, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पे थे वो, अर्जुन अवस्थी उनका नाम है। वो भी बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड हैं, और अभी तक उनका और हमारा साथ बरकरार है। और अभी जब ये आपका इंटरव्यू हुआ, तो उस दौरान भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी विशेष दी। उसमें हमारे अजय वर्मा सर हैं, सुधीर कटारिया सर हैं, और उसके अलावा हमारी हेम शर्मा मैडम हैं। तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोगों की विशेष भी आई, और वो सारे किसी न किसी तरह से व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ टच में रहते हैं। तो सबका बहुत सहयोग है, बहुत प्यार है। हमने जहाँ भी जॉब की, यहाँ भी जो हमारा स्टाफ है बहुत अच्छा है। हमारे एचएम मैम, प्रिंसिपल मैम, और बाकी स्टाफ हमारा अ, बहुत अच्छा है यहाँ भी, और वहाँ भी बहुत अच्छा था। हमें किसी तरह से भी कोई प्रॉब्लम इस तरह की कहीं पे नहीं आई कि हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या किसी तरह से हमें कोई परेशान कर रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम
हमारे साथ हमने कभी भी फेस नहीं की। वो बहुत अच्छी बात है भैया, आपने शेयर किया। अभी आप शायद बहुत पॉजिटिव हैं आप जिंदगी में, और आप पॉजिटिविटी रेट स्प्रेड करते हैं। दैट्स रियली नाइस। तो लोग आपसे जुड़ते हैं और आप भी लोग से जुड़ जाते हैं अपने गानों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा आप सभी को आकर्षित करते हैं, ये हमने देखा। आपके बात करने का अंदाज अच्छा है, आगे वालों को सम्मान करना। तो दैट्स रियली नाइस, ये सभी को सीखना है। और जो हमारे मदद करते हैं और हम उनका आदर करना, उनको याद करना और उनका शुक्रिया अदा करना, वो आप में है, जो फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड। दैट्स रियली नाइस। भैया अभी हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश हम सामने रखना चाहेंगे। आप छोटा सा गाना गा दीजिए हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। कौन सा गाना गाने वाले हैं हमारे लिए आज? अ, ये ये एक गजल है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उस्ताद गुलाम अली साहब का नाम बहुत बड़ा नाम है। उस्ताद गुलाम अली साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। उनके द्वारा गाई हुई ये गजल है, मैं उसको गाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। वे ना रोया करेंगे आप भी पैरों इसे तरह, रोया करेंगे आप भी पैरों इसे तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह, रोया करेंगे आप भी पैरों इसी तरह। ना ताब हिज्र में है ना आराम वस्ल में, ना ताब हिज्र में है ना आराम वस्ल में, कम वक्त दिल को चैन नहीं है किसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह, रोया करेंगे आप भी पैरों इसी तरह। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा था। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, दैट्स रियली नाइस। एक्सीलेंट सर। भैया आप ये पूछना चाहेंगे, सिर्फ गजल्स ही गाते हैं या बॉलीवुड के गाने भी गाते हैं, या कोई दूसरे भाषा में? अब ये हिंदी में आप गा चुके हैं, कोई अलग अलग भाषाओं में भी गाते हैं आप? देखिए मैम, जहाँ तक गाने की बात है तो मैं ज्यादातर तो गजल ही गाता हूँ, या फिर थोड़ा बहुत ख्याल गा लेता हूँ, यानी कि क्लासिकल म्यूजिक जिसको हम कहते हैं। कोई कोई पंजाबी गाना अगर अच्छा लगता है तो वो भी गुनगुना लेता हूँ कभी कभी। और या फिर दूसरी भाषाओं का तो मैंने ज्यादा कुछ गाया नहीं है। हाँ, बच्चों को मैंने कुछ चीजें ऐसी सिखाई हैं दूसरी भाषाओं की। तो एक तेलुगु सॉन्ग था, वो पिल्लल लारा, वो मैंने बच्चों को सिखाया था। हमारे यहाँ आकाश गंगा एक गुजराती गीत है, वो मैंने बच्चों को सिखाया था। लेकिन मैं खुद ही प्रोफेशनली ऐसे बहुत अलग अलग लैंग्वेज में नहीं गाता हूँ। मैं अक्सर हिंदी, उर्दू या फिर इस तरह के
गजलें या फिर पंजाबी गीत कभी कभी कोई मन करता है तो वो गा लेता जी 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 भैया, हमको ये तेलुगु गाना सुनाइए सुनाइए प्लीज, पिल्लल्लारा। हूँ। जी मैम, मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। जी जी जी। పిల్లల్లారా పాపల్లారా రేపటి భారత్ పౌరుల్లారా పెద్దలకే ఒక దారిని చూపే పిల్లల్లారా పిల్లల్లారా మీ కన్నుల్లో పున్నమి జాబిలి ఉన్నాడు ఉన్నాడు పౌతున్నాడు మీ మనసులో దేవుడు కొలువై ఉన్నాడు పాపల్లారా రేపటి భారత్ పౌరుల్లారా పెద్దలకే ఒక దారిని చూపే పిల్లల్లారా పిల్లల్లారా మీ కన్నుల్లో పున్నమి జావలి ఉన్నాడు ఉన్నాడు పౌతున్నాడు మీ మనసులో దేవుడు కొలువై ఉన్నాడు ఉన్నాడు అతడున్నాడు మీ కన్నుల్లో పున్నమి జావలి ఉన్నాడు మీ మనసులో దేవుడు కొలువై ఉన్నాడు భారత్ మాతకు ముద్దుల పాపలు మీరేలే మీరేలే అమ్మకు మీపై అంతేలేని ప్రేమేలే ప్రేమేలే పిల్లల్లారా పాపల్లారా రేపటి భారత్ పౌరుల్లారా పెద్దలకే ఒక దారిని చూపే పిల్లల్లారా పిల్లల్లారా वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। दैट्स रियली नाइस। तो हमारे बचपन याद आ गई जब ये गाना गाए आप। दैट्स रियली नाइस। शायद बहुत लोगों को ये गाना पसंद आएगी, क्योंकि बहुत लोग इस गाने को बहुत मानते हैं, स्पेशली बहुत बहुत तेलंगाना शुक्रिया। एंड आंध्र प्रदेश। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और मैंने ये गाना बच्चों के लिए सीखा था, क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए ऐसे ऐसे गाने में हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर हमें अलग अलग लैंग्वेजेस के गाने बच्चों को सिखाने हैं। तो उसमें से कुछ कुछ गाने मैंने सीखे थे, उसमें से एक गाना ये भी था। और ये बहुत अच्छा गाना है और बहुत अच्छे इसका मतलब भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन हमारे एक तेलुगु मैडम है, हमारे स्कूल में नर्स हैं, तो उन्होंने मुझे इसका मतलब भी थोड़ा बहुत बताया था कि बच्चों के लिए ये गाना है और बहुत सुंदर गाना है। जी भाई साहब, अभी हमें आकाश गंगा के बारे में भी आप थोड़ा सा सुना दीजिए। वो गाना, वो गुजराती गाना है या कन्नड़ गाना है भाई साहब? नहीं, वो गुजराती गाना है। वो मैं आपको थोड़ा सा स्थाई उसकी गुनगुना के सुना देता हूँ। जी जी जी, अभी आकाश गंगा हो जाए। आकाश गंगा सूर्य चंद्र तारा संध्या उषा कोई ना નથી कोनी भूमि कोनी नदी कोनी सागर धारा भेद केवल शब्द
हमारा ने तुम्हारा, आकाश गंगा सूर्य चंद्र तारा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर, आपने हमारा म्यूजिक टीचर याद दिला दिए हमें। हमारी म्यूजिक टीचर थी सुमित्रा मैडम। तो ये गाना हमको सिखाए थे जब हम स्कूल में थे। तो इट टेक्स मी बैक डाउन मेमोरी लेन। दैट्स रियली नाइस। इट्स अ गुड फीलिंग। दैट्स रियली नाइस। बहुत 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 शुक्रिया। जी जी भैया, कितने सालों के बाद सुन रही हूँ ये गाना, कम से कम 35 साल हो चुके हैं। ये गाना फिर दोबारा सुन रही हूँ मेरी जिंदगी में। दैट्स रियली नाइस। अरे जी जी मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ऐसा सुन के आपको अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि बचपन से ज्यादा अमूल्य कुछ नहीं होता जीवन में, मुझे ऐसा लगता है। बचपन सबसे ज्यादा कीमती होता है, और उसको, उसकी यादों को संभाल के रखना अगर आप रख पाएंगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। और जो लोग अपना बचपन भूल जाते हैं, यानी कि अपनी जमीन भूल जाते हैं, वो कभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि वो कितने भी कामयाब हो जाएं, लेकिन उनको, उनकी जिंदगी में उनको सुकून नहीं मिलेगा कभी भी। तो इसलिए हमें बचपन की यादों को अपनी हमेशा के लिए अपनी तिजोरी में संभाल के रखना चाहिए। मुझे आज भी अपने बचपन की बहुत सारी यादें याद हैं, और जब भी मेरे घर वालों से बात होती है मेरी, तो मैं उनको कभी कभी बताता हूँ तो वो खुद शॉक्ड हो जाते हैं कि तुम्हें याद है, हमें याद नहीं है। मेरी मम्मी को भी कई बार याद नहीं होती ऐसी चीजें। तो मैं, मेरा जो गांव है बिल्कुल छोटा सा गांव, कोठे सदाना के नाम से मशहूर है, वहाँ पे लोग रड़ा के नाम से जानते हैं। लेकिन इतना खूबसूरत गांव और इतनी अच्छी शांति थी वहाँ की। अब तो थोड़ा सा लोग प्रोफेशनल ज्यादा हो गए हैं, तो आपस में मेल जोल वैसा नहीं रहा। नहीं तो पहले लोग छतों पे चारपाइयाँ लगा के, या फिर एक वृक्ष होता था स्कूल के अंदर, वहाँ पे लोग गर्मियों में छाँव में बैठ के खूब बातें करते थे, खूब गाने सुनते सुनाते थे, खूब अ, अपना जो पुरानी ट्रेडिशनल कहानियां होती हैं, जिसको हम किस्से कहानियां जिस तरह की होती हैं, वो हमारे यहाँ पे जैसे मिर्जा साहिबा की कहानी मशहूर है, जैसे हीर रांझा की कहानी मशहूर है। इस तरह की चीजें हम सुना करते थे। तो बचपन हमारा सबसे खूबसूरत तोहफा भगवान हमें देता है, बचपन। अगर हम उसे भूल जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम भगवान को भी भूलते हैं और अपनी सुकून को भी भूल जाते हैं। तो बचपन को याद रखना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा मानना जी जी, है। बहुत को आपने कहा भाई साहब, सही कहा आपने। अभी हम ये जानना चाहेंगे, आप जब गाते हैं तो आपके स्टूडेंट्स आपको क्या कहते हैं? व्हाट डू दे टेल यू? आपके हो जाते क्लास हो जाने के बाद में या स्कूल हो जाने के बाद में, क्या आपके साथ आके बैठ के बातें करते हैं कि आपको ये करते हैं कि सर ये गाना सुना दीजिए हमें, या ये गाना सिखाइए सर, थोड़ा वो तंग करते हैं, या आप जो सिखाते हैं वही सीखते हैं, या कुछ वो रिक्वेस्ट भी करते हैं आपसे कि भाई भैया सर ये सिखाइए हमें, ऐसा? जी जी, देखिए स्टूडेंट्स मैम हर तरह के होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत क्लोज हैं मेरे, और वो वही सीखते हैं जो मैं उनको सिखाता हूँ। उनको पता है कि सर जो सिखाएंगे अ, वो मतलब उनके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी डिमांड भी रहती है, तो हम्म। वो अ, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग भी कहते हैं कि हमें ये सिखा दीजिए। कुछ कुछ बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आज ये वाला गाना सिखा दीजिए, आपने ये गाना करवाया था, ये हमें बहुत अच्छा लगा, एक बार हम इसको रिपीट करवा दीजिए, एक बार इसको हमें गुनगुना के मतलब सुना के मतलब आप गा के हमें सुना दीजिए। इस तरह की रिक्वेस्ट भी बच्चे करते हैं। और अलग अलग टाइप के बच्चे हैं। कुछ बच्चे थोड़ी बहुत शरारत भी करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो ओबियसली थोड़ा सा परेशान करना, या थोड़ा सा टीचर को हल्का फुल्का मतलब तंग करना, वो तो नॉर्मल बात है। और उसमें भी हमें आनंद आता है, क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं तो बच्चों के बिना जब स्कूल जाते हैं ना, कई बार ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो हमें उसका मतलब पता चलता है कि बिना बच्चों के स्कूल कैसा लगता है। उसमें स्कूल में सुनसान बिल्कुल स्कूल, और उसमें किसी तरह का कोई मज़ा नहीं आता। तो जब बच्चों के साथ होते हैं तो उसकी फिर अहमियत बाद में आपको समझ आती है कि बच्चे भले थोड़ी शरारत करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना, उनकी बातें सुनना। कई कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बच्चे। तो हर तरह के बच्चे हैं, और हर तरह का एक्सपीरियंस उनके साथ हमारा रहा। जी भैया, बहुत अच्छी आपने आंसर बहुत अच्छी तरीके से दिया।
बच्चों के अहमियत जानना। जब हम टीचर्स हैं और जब बच्चे से मिलते हैं, हम थोड़े लोग शरारती लोग रहते हैं, बच्चे लोग थोड़े लोग अच्छे पढ़ते हैं, थोड़े बहुत काम और क्वाइट बच्चे रहते हैं। तो दैट्स रियली नाइस व्हाट यू शेयर्ड। एक सच्चाई ये भी है, थोड़े शरारती बच्चे भी हैं, लेकिन उनके बिना भी स्कूल अधूरा रहेगा या क्लास अधूरी रहेगी, राइट? भैया आप जी। जब स्कूल में थे, क्या आप भी शरारत करते थे कभी कभी? आप एक बड़ा होनहार स्टूडेंट थे। आप कैसे थे अपने स्कूल लाइफ में? देखिए मैम, कितना भी होनहार स्टूडेंट रहे, बच्चा तो बच्चा होता है। और हम भी अपने ज़माने में खूब शरारत करते थे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि हम तो बहुत सीरियस थे तो हमने कभी भी शरारत नहीं की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि बच्चा तभी बच्चा होता है जब तक वो शरारत करेगा। अगर वो शरारत नहीं करेगा तो उसको बच्चा कौन कहेगा, फिर तो बड़ा हो गया वो बचपन में ही। तो हम भी अपने समय पे बहुत तरह की शरारतें करते थे। हमारी शरारतें थोड़ी सी दूसरे बच्चों से थोड़ी सी अलग होती थी। कभी हम मतलब कोशिश ये करते थे कि दूसरे बच्चे को, दूसरे इंसान को, जिसके साथ भी हम शरारत कर रहे हैं, उसको वो मन से हर्ट ना हो वो। वैसे हम उसको रिझाने के लिए, उसको थोड़ा बहुत हंसाने के लिए इस तरह की शरारतें किया करते थे। और जब हम गांव में रहते थे तो कई बार क्या होता था कि मम्मी कहती थी कि तुम सो जाओ। हमारा सोने का मन नहीं होता था तो हम उनको, वो भी हमारे साथ सोती थी तो हम उनको चकमा देके उठ के भाग जाते थे बाद में, जब वो सोती रह जाती थी। फिर उनको बाद में पता चलता था कि वो तो बच्चे हमारे साथ हैं ही नहीं। तो इस तरह की शरारतें थोड़ी बहुत करते थे हम भी, सब बच्चे करते हैं, हम भी करते थे। कभी थोड़ी बहुत किसी को मार पीट दिया, या किसी से हमें भी किसी ने थोड़ा बहुत मार पीट दिया, वो छोटा मोटा जो भी कुछ होता है हर बच्चे के साथ, वो हमारे साथ भी था। हम कोई स्पेशल नहीं है कि हम शरारत नहीं करते थे। हमने भी खूब शरारतें की हैं और हमारे साथ भी लोगों ने खूब शरारतें की हैं। ऐसे ही चलता था जीवन, और उसी में हंसी खुशी मिलती है इंसान को। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। यू शेयर दैट वेरी नाइस। अभी आप माँ के बारे में शेयर शेयर करे थे, अभी अपने मम्मी जी के जी। बारे में। जी। तो आज हम ये पूछना चाहेंगे, एक अच्छी सी बात जो अपने मम्मी जी से सीखे। बहुत सारी अच्छी बातें सिखाए होंगे आपके मम्मी जी ने, लेकिन आप सबसे खास वाली बात क्या सीखे अपने माँ से? क्योंकि हम लोग सब सीखते हैं अपने माँ से। मेरी माँ से मैंने हिम्मत नहीं हारना मैंने सीखा। उसके जी। अलावा बहुत कुछ सीखा मैंने, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, जब कभी दुख सामने आए तो हिम्मत नहीं हारना, ये मैंने सीखा। तो आप क्या सीखे अपने मम्मी से? कौन सी ऐसी बात है जो मन में आपका, जो आप शेयर करना चाहेंगे आज अपनी मम्मी के बारे मेरी जो मम्मी हैं, बहुत ही सीधी और बिल्कुल घरेलू औरत हैं। उनको किसी भी इधर उधर के झगड़े फसाद से कोई लेना देना नहीं होता। तो हमने उनसे हमेशा यही सीखा है कि जब भी आपके ऊपर कोई कोई भी किसी तरह का इल्जाम लगाता है या कोई कुछ भी कहता है, तो आपको उसमें काम रहना है। अपना जो संतुलन है उसको खोना नहीं है, और उसको प्यार से हैंडल करने की कोशिश करनी है। वही हमने उनसे सीखा, जो अब तक हम करते आ रहे हैं। पिछले इंटरव्यू में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम पे कोई चिल्लाता है या कोई कुछ भी करता है, तो हम उनको इग्नोर करके आगे निकलते हैं। इसलिए कि अ, हमारी मम्मी ने हमें शुरू से वही सिखाया है कि आपको किसी के साथ भी वैर द्वेष इस तरह की चीजें नहीं रखनी है। और हमेशा अपनी जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहना है। वही हमने मम्मी से हमेशा हमेशा सीखा। जी जी। अभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भैया। जी। इस दुनिया में सभी माँ मम्मी लोग जो है या माँ है, सभी लोग जो है, ऑल द मदर्स इन द वर्ल्ड, एक, आई वुड लाइक यू टू सिंग अ सॉन्ग फॉर ऑल द मदर्स इन द वर्ल्ड। एक ट्रिब्यूट के द्वारा, जस्ट गिव अ ट्रिब्यूट टू ऑल द मदर्स। आई पुट इट राइट। भैया आप हमारे लिए एक गाना गा दीजिए, सभी माए के लिए, उनके दिल तक पहुंचे एक अच्छा सा गाना उनके सम्मान में। So, dear friends, we've requested our celebrity guest to sing a song for all the mothers across the world, to honor all the mothers, and to share a song as a tribute to all the special people in our lives. It is our mother. माँ, माँ, तू सचमुच रानी। माँ, माँ, तू सचमुच रानी। माँ,
ਦਿਲ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਬਚਪਨ ਦੇ, ਦਿਲ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਬਚਪਨ ਦੇ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਯਾਦ ਕਹਾਣੀ ਮਾਂ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਣੀ ਮਾਂ। यस सर, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, दैट्स रियली नाइस। बहुत बहुत अच्छा लगा ये गाना सुन के हमें। भैया जी अभी शुक्रिया। सारे लोग जो है उत्सुक होंगे, थोड़े लोग जो यंगस्टर्स होते हैं, एक रोमांटिक गाना वो भी सुनना चाहेंगे, तो बहुत रिक्वेस्ट आ चुके हैं। अगर मुकेश साहब आए हैं आपके सामने तो आप रिक्वेस्ट कीजिए, एक अच्छा रोमांटिक गाना गा दीजिए। कौन सा गजल गाएंगे या कौन सा गाना गाएंगे हमारे लिए? देखिए एक रोमांटिक गजल है, उस्ताद हरिहरन साहब, जनाब हरिहरन साहब की गाई हुई है, और इसको मुमताज राशिद साहब ने लिखा है, और मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने इसको थोड़ा सा प्रस्तुत करने की। फूल है चांद है क्या लगता है, फूल है चांद है क्या लगता है, भीड़ में सबसे जुदा लगता है, फूल है चांद है क्या लगता है, भीड़ में सबसे जुदा लगता है, फूल है चांद है, उसकी कुर्बत में अजब दूरी है, उसकी कुर्बत में अजब दूरी है, उसकी कुर्बत में अजब दूरी है, आदमी हूँ के खुदा लगता है, आदमी हो के खुदा लगता है, फूल है चांद है। और ये बहुत अच्छा शेर है एक, जी उसके होठों से मैं अब क्या मांगू, 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 जो भी कहता है दुआ लगता है, जो भी कहता है दुआ लगता है, फूल है चांद है क्या लगता है, एक्सेलेंट एक्सेलेंट भैया, बहुत बहुत खूब, वेरी वेरी नाइस, सुपर। जी शुक्रिया शुक्रिया। जी जी, थैंक यू वेरी मच भैया। अभी हम ये पूछना चाहेंगे आपसे मुकेश भैया, आपका जी सबसे बड़ा ताकत क्या है? मेरे को लगता है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत संगीत ही है, क्योंकि उसने ही मुझे शुरू से, बचपन से ही ताकत दी कि आपको आगे बढ़ना है, आपको आपको अम, दुनिया में अपना अपने लिए कुछ करना है, दुनिया के लिए कुछ करना है, या
आपके जो गुरुओं ने आपको तालीम दी है मुझे, उसको आगे बढ़ा के और उससे और लोगों को भी मुझे सिखाना है और अपने आप को भी स्टेब्लिश करना है दुनिया में। तो मुझे लगता है संगीत ही सबसे बड़ी ताकत है। इसी के बलबूते पे आज तक मैं जो भी कुछ कर पाया हूँ, ये उसी की वजह से है, क्योंकि ये मुझे अंदर से एक ताकत देता रहता है कि अब तुम्हें ये करना है। और वो मैं गोल जो सेट कर लेता हूँ उसको, वो भगवान की कृपा से खुद ब खुद संगीत के द्वारा पूरा करवा देता है। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भैया। अभी हम ये जानना चाहेंगे मुकेश साहब, अबाउट द कल्चरल प्रोग्राम्स, किन किन तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स में आप भाग लेते हैं? शायद क्या आप दिल्ली छोड़ के कहीं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में या स्टेट्स में जाना पड़ेगा कार्यक्रमों में? किस तरह के आप दूसरों के साथ मिलकर कल्चरल एक्टिविटीज में भाग लेते हैं? देखिए मैम, पहले तो जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमेशा हम संगीत सुनने जाया करते थे। तो किसी भी जगह पे अच्छा संगीत हो, जैसे कि यहाँ पे फेमस है हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जालंधर का, उसमें उसको भी हमने सुना है। हमारे यहाँ पे अमृतसर में शीतला मंदिर में होली पे एक राग सभा होती है, उसको राग राग सभा के नाम से ही जानते हैं, वो हम सुनते थे। उसके बाद यहाँ पे जब हम दिल्ली में आए तो यहाँ पे कमानी ऑडिटोरियम में बहुत सारे आर्टिस्ट के प्रोग्राम होते रहते हैं। इंडियन इस्लामिक सेंटर यहाँ पर है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो वो हम सुनने जाते थे। अब हमारे जब प्रोग्राम स्टार्ट हुए 2018-19 में, मैंने थोड़ा बहुत शुरू किया था यहाँ पर 18 के आसपास, तो हमें भी बहुत जगह पे जाने का मौका मिला। यहाँ नियर गुड़गांव है, गुड़गांव में हमने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं। यहाँ दिल्ली में ये इंडियन इस्लामिक सेंटर में हमें गाने का मौका मिला। उसके अलावा कुछ प्राइवेट पार्टीज थी, उसमें भी हमने भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ गाया है। और अभी हमने दोबारा स्टार्ट किया गाना अब दिल्ली आने के बाद। तो रिसेंटली एक प्रोग्राम हमें मिला था रोहिणी के अंदर, वो AICB के नाम से मशहूर है, एक इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड। वो भी ब्लाइंड्स के लिए ही काम करते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए काम करते हैं। तो उनके यहाँ पर एक गजल का प्रोग्राम था, श्यामे गजल, उसमें अभी हमने एक प्रस्तुति अपनी दी थी। तो वो भी लोगों को काफी पसंद आई भगवान की कृपा से। तो इस तरह से अभी अब हमने दोबारा से यहाँ पर आके अपना सफर स्टार्ट किया है। अभी थोड़ा बहुत रियाज चल रहा है, अभी तो बहुत ज्यादा रियाज नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, कुछ तबीयत का इशू आ गया था। तो उस चक्कर में मेरा थोड़ा सा रियाज छूट गया और गुरुजी के पास आना जाना भी थोड़ा कम हो गया था। तो अब दोबारा से फिर से अपने आप को पटरी पर ला रहे हैं। और मैंने जैसा कहा, उसके लिए भी ताकत संगीत ही देता है, शुरू से देता रहा है, और अब उसने मुझे फिर से पुश करना शुरू किया कि तुम्हें जिंदगी में और आगे कुछ करना है, तो ये छोटी मोटी तकलीफों को छोड़ो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना शुरू करो। तो और इसमें हमारे जो स्कूल के स्टाफ है उसका भी बहुत योगदान है, वो भी हमें हिम्मत देते रहते हैं। और हमारे दोस्त लोग, हमारे ऊपर एक भैया रहते हैं, हरी भैया उनका नाम है, वो भी बहुत इसमें हमें हिम्मत देते हैं। अभी हमारे पास आए थे वो, थोड़ी देर पहले हमारे साथ ही थे। तो उन्होंने भी इसमें हमें बहुत हिम्मत दी है। कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हीं से पूछते हैं कि अब ये हमारा गाना कैसा आ रहा है, अब ये चीज़ कैसी आ रही है, ये अच्छा है या इसमें कोई कमी है। तो वो हमें गाइड करते रहते हैं। और ऐसे हमारे अर्जुन सर हैं वहाँ से पठानकोट से, वो हमें गाइड करते रहते हैं। तो अभी गाइडेंस का दौर जारी है। गुरुजी के अलावा, मतलब गुरुजी तो करते ही हैं, गुरुजी जो गाइड करते हैं वो तो उनकी गाइडेंस तो अलग है। इसके अलावा भी हम अपने आप भी उसको थोड़ा बहुत सुन के खुद को कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई कमी ढूंढने की। और जो हमारे साथी, जो हमें साथ हमारे हमेशा साथ रहते हैं, और उनसे भी हम ये पूछते रहते हैं कि आप हमें ये बताइए कि हमारी कमी क्या रह गई, उसको हम सुधार सकें। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स रियली नाइस। भाई साहब, अभी हम ये पूछना चाहेंगे, क्या बॉलीवुड से कुछ अच्छा सा गजल आप चुन के गा सकते हैं? मुझे तो ये चिट्ठी आई है गाना बहुत पसंद है, पता नहीं वो गजल है या नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पंकज उदास जी ने गाया है वो मुझे मालूम है, इफ आई एम जी। नॉट मिस्टेकन। क्या वो गाना हमारे लिए गा सकते हैं? चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है।
मैम मुझे ज्यादा तो नहीं आता, एक दो लाइन कोशिश जी करता जी। हूँ। जी भैया। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। मैम इससे आगे मुझे आता नहीं है, शुक्रिया, इतना जी सा जी। आता है मुझे। जी जी, आपने बहुत अच्छा गाया, आपका आवाज बहुत सुरीली है, वेरी नाइस, यू नो यू हैव संग इट वेरी वेल। थैंक यू। एक एक टाइम बहुत हिट था ये गाना और सभी लोग गा हम्म। रहे थे, इसका इस गाने में बहुत मतलब है। दैट्स रियली नाइस। मेरे ख्याल से ये बॉर्डर फिल्म का या ऐसे कुछ किसी नाम फिल्म का नाम गाना, मूवी का नाम नाम फिल्म का था गाना। नाम, संजय दत्त इसमें किरदार जी जी। के रूप में। जी जी। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये किसी दुकान पे चलते चलते थोड़ा सा सुना था, तो मुझे वो हल्का सा याद आया। और पहले तो बहुत सुनते थे, लेकिन अ, अभी बीच में क्योंकि टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, तो हम सुन थोड़ा कम पा रहे हैं, इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो वो गाने याद नहीं है, अदरवाइज गुनगुना लेते हैं थोड़ा बहुत। आपने अच्छा गा लिया हमारे लिए, बस इतना दो दो चार लाइन तो गा दिए हमारे लिए, वो दैट्स ग्रेट। आई एम हैप्पी विद दैट, दैट्स रियली नाइस, यू हैव अ वंडरफुल वॉइस। शुक्रिया शुक्रिया। अभी हम ये पूछना चाहेंगे भैया आपसे, जब आप क्लास जी। लेते हैं तो इज इट को एजुकेशन गर्ल्स एंड बॉयज और ओनली लाइक बॉयज और सेपरेट गर्ल्स लाइक दैट? नहीं, ये को एजुकेशनल स्कूल इंस्टीट्यूट है हमारा, केंद्रीय विद्यालय। तो इसमें गर्ल्स एंड बॉयज साथ में सीखती हैं, और साथ में ही बहुत अच्छे से हम उनको मतलब लड़कियां भी हमें बहुत अच्छे से कोऑपरेट करती हैं, और लड़के भी। तो कोशिश करते हैं कि हम दोनों को बैलेंस करके सिखा सकें। ज्यादा कौन सामने आते हैं सर हमको सीखना है, लड़कियां आते हैं या लड़के आते हैं, कौन हु इज द फर्स्ट? हाँ। आसक्ति दिखाते हैं कौन, इंटरेस्ट कौन दिखाते हैं? आज के ज़माने में जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि लड़कियां ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है लड़कियों का इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है सीखने में भी और पढ़ने में भी। मतलब पढ़ाई में भी और संगीत में भी बहुत ज़्यादा लड़कियां आगे आ रही हैं धीरे धीरे। ऐसा मैंने महसूस किया, और अभी मेरे पास ज़्यादातर लड़कियां आती हैं कि सर मुझे ये सिखा दीजिए, मुझे हारमोनियम सीखना है सर, मुझे ये कॉन्गो सीखना है सर, मुझे ये तबला सीखना है, मुझे गाना सीखना है। तो ज़्यादातर लड़कियां ही आती हैं मेरे पास। और कुछ कुछ लड़के आते हैं, लेकिन लड़कों की तादाद कम है लड़कियों से। लड़कियों की तादाद थोड़ी ज़्यादा है इस समय। जी 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 भैया। मुकेश भैया, अभी हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, आप एक अच्छा सा संदेश दे दीजिए सभी को। थोड़े पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को गाना गाना गाने में या स्पोर्ट्स में रुचि रखना या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेना वो नहीं पसंद करते। थोड़े पेरेंट्स बस पढ़ाई करो बस, और कुछ भी नहीं। सुबह ट्यूशन जाओ, स्कूल जाओ, फिर उसके बाद में शाम आ जाओ, फिर आप ट्यूटोरियल्स जाओ। ऐसा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सच एज सिंगिंग, स्पोर्ट्स या एक्टिंग या कुछ भी हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, स्केटिंग, ऐसा तो उसमें उतना आसक्ति नहीं दिखाते पेरेंट्स। बच्चे दिखाते हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं दिखाते हैं। तो आप उनके लिए एक अच्छा संदेश दे दीजिए। देखो आज आपने अपना करियर बना लिया है म्यूजिक में, आप एक अच्छे म्यूजिक मास्टर बन चुके हैं। वैसे आप एक अच्छा संदेश दे दीजिए कि भाई अपना हॉबीज या अपना पैशन को भी एक प्रोफेशन के रूप में बदल सकते हैं। जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज का जो दौर है उसमें पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को समझना चाहिए। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई थोड़ा कम करना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा उनके इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम जिसको हम कहते हैं या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, ड्राइंग हो गया,
और भी आजकल ये कंप्यूटर का युग है, तो टेक्निकल चीज़ें भी हैं उसमें शामिल। तो उसमें लोगों का बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि बच्चे ऐसी कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आपको उनको बल्कि सपोर्ट करना चाहिए कि वो उसको और अच्छे से सीखें, क्योंकि जो भी उनको सीखना है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही सीखेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर उनका इंटरेस्ट पढ़ने में नहीं है, थोड़ा कम है, तो वो कम ही पढ़ेंगे। और उसमें अगर वो एवरेज मार्क्स ला रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है ऐसा। उनको अगर वो उसके साथ साथ कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जो जिसको वो आगे ले जा सकते हैं, और जिसके द्वारा बाद में उनका और उनके पेरेंट्स दोनों का नाम भी रोशन होगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसमें हमारा देश भी देश का भी नाम हमारे का वो आगे जाके रोशन करेंगे। पर हमारा देश तो वैसे भी कलाओं का देश है, जो मैं समझता हूँ। भारत देश रिच कलाओं का देश है। बहुत सारी कलाएं यहाँ पर पनपी हैं, और उनको ही हम शुरू से ट्रेडिशनली हम उनको ही हम लेके चल रहे हैं और आगे भी लेके चलते रहेंगे। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं आधुनिक नरेंद्र मोदी जी, वो भी इसका जिक्र हमेशा करते रहते हैं, और वो ऐसी चीज़ों को बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसा उनकी बातों से और उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं उससे लगता भी है। तो मैं इसीलिए पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। सबसे पहले तो मैं यही कह दूं कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है। लेकिन आप संगीत को या कला, किसी भी कला को बिल्कुल भी छोटा ना समझें। हर कला अपने आप में एक बहुत बड़ा चरित्र लिए हुए है, एक बहुत बड़ा उसका दायरा है। उसको आप छोटा ना समझें। और हर कला किसी ना किसी टेक्निक पे आधारित है। जैसे जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं वो बताते हैं कि हम ये आविष्कार करते हैं, हम वो आविष्कार करते हैं। इसी तरह हमारे संगीत के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ों का इलाज आजकल किया जा रहा है। बहुत सारी मेडिटेशन होती हैं, बहुत सारी लोगों को शांति मिलती है, वो लोगों की बीमारियां उससे दूर हो रही हैं। तो इस तरह से ये भी एक एक साइंस का एक हिस्सा हो गया है लगभग। तो हर जो कला है वो अ, अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखती है। तो हम पेरेंट्स से ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने बच्चे, अगर उनके बच्चे कुछ भी इस तरह की कला सीखना चाहते हैं, तो उसको उनको उसमें सपोर्ट करना चाहिए। उस बच्चे को के साथ होना चाहिए, और उसको ये समझाना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा आपको साथ साथ पढ़ना भी है, और आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो आपको उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि आप संगीत सीखेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे, आप ये नहीं कर पाएंगे, या आप स्पोर्ट्स आप खेलेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने भी संगीत के साथ साथ पढ़ाई की है, और हमने आपको बताया कि एमफिल तक हमने स्टडी की है। उसके बाद पीएचडी करनी अभी हमें बाकी है हमारी, वो हम अभी करेंगे। और वो तो ताउम्र चलता रहता है, ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला। और जो भी इंसान होगा, या वो संगीतिक हो, या वो कोई खेल में हो, या वो किसी भी फील्ड में हो, वो साथ साथ कुछ ना कुछ पढ़ता भी रहता है। और जो क्रिएटिव आदमी होता है वो किसी न किसी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी कर ही लेता है। तो इसलिए भगवान की कृपा समझ के जो भी कला उसको भगवान ने दी है उसको स्वीकार करते हुए उसमें आप उसको सपोर्ट करेंगे, तो वो डेफिनेटली बहुत आगे जाएगा। आपका और आपके परिवार का, अपने देश का, अपना सबका नाम रोशन करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये मैं हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस तरह से बच्चों को डिमोटिवेट ना करें, बल्कि उनको मोटिवेट करें कि आप इस तरह की कलाओं में भाग लें और उसको अच्छे से सीखें। जी मुकेश सर, आप एक अच्छा स्पीकर भी है, यू स्पीक वेरी वेल। आप गाते भी अच्छे हैं, और जब बात करते हैं तो लोग और भी सुनना है आपके बात। तो यू आर अ वंडरफुल स्पीकर एज वेल, यू आर अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, दैट्स ग्रेट। तो आपको भगवान ने दो तरह के व्हाट यू से अर्लियर यू मेंशन्ड दैट इट्स अ गॉड गिफ्ट, आपने कहा था अर्लियर, स्टार्टिंग में आपने शेयर किया था, ये गॉड गिफ्ट है। और आपके जो स्पीकिंग एबिलिटीज है, आप जो शेयर करते हैं मन की बात या अपने दिल की बात, या किसी को कुछ शेयर करना है मैसेज,
You are a wonderful speaker as well, a great motivational speaker. And hats off to you for that, Mukesh sir. That's wonderful. बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और इसमें मैं ये बता दूं कि मेरा कोई भी योगदान नहीं है, क्योंकि मैं जो भी मेरे दिल में होता है मैं सिर्फ वही बोलता हूँ। और मैंने जो फेस किया है अपने जीवन में, कुछ उसका कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास है। और क्योंकि मैंने भी इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है संगीत सीखने के लिए। और मेरा तो आप समझते हैं कि थोड़ा सा विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो उसके के लिए भी मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। उसके बारे में पिछले इंटरव्यू में जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो मैं उन लोगों को हालांकि इग्नोर करता हूँ, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है कि किस किस तरह के लोग हमारे जीवन में अड़चन पैदा करना चाहते हैं, या हमें रोकना चाहते हैं कि आपको ये नहीं करना है, या ये आपको ये अगर आप इसमें कामयाब होंगे तो वो आपसे किसी भी तरह की भावना से, मतलब आपको रोकना चाहते हैं। तो आपको रुकना नहीं है, बस ये मेरे दिल में अंदर से आवाज है, और उसी को मैं, जो भी कुछ मेरे दिल में चलता है उसी को मैं एक्सप्रेस करता हूँ। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, या मैंने कोई इसकी स्पेशल कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो मेरे दिल में होता है वो बस मैं वो कह देता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। That's really nice. Thank you so much for sharing that, sir. Thank you very much. एक अभी एक क्वेश्चन है सर, अगर भगवान जी आपके सामने प्रकट हुए और आप 3 प्रश्न पूछ सकते हैं भगवान जी से, क्या पूछेंगे आप? किन 3 प्रश्नों का जवाब हाँ मांगेंगे आप? मैम, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है कुछ प्रश्नों के बारे में कि क्या पूछूंगा, क्योंकि भगवान से मैं कुछ भी पूछने के लायक अपने आप को समझता नहीं हूँ। बस अगर भगवान प्रकट होते हैं तो मैं उनसे हमेशा यही मांगूंगा कि मुझे हमेशा अच्छा संगीत दें, और संगीत में जो मैं करना चाहता हूँ उसमें मुझे वो कामयाब करें। बस इतना ही मेरा उनसे उनसे गुजारिश होगी, रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट होगी सिर्फ। मैं उनसे कोई भी प्रश्न करने के लायक अपने आप को नहीं समझता हूँ। तो मैं जब भी भगवान के दर्शन करता हूँ, जब भी हमारे घर पे भी मंदिर है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भगवान आप सब दुनिया को शांति प्रदान करें, सद्बुद्धि दें, और इसके अलावा जो जो सबकी अच्छी इच्छाएं हैं उनको जरूर पूरा करें। अगर किसी की कोई बुरी इच्छा है तो उसको उसके मन से निकाल कर, और उसके अंदर अच्छी जो इच्छा है उसको प्रवाहित करके, और उस इच्छा को पूरा करें। तो मैं भी हमेशा भगवान से अपने संगीत के लिए ही गुजारिश करता हूँ कि मुझे आप अच्छा संगीत दें, और मैं अच्छा सीख सकूं, और अच्छा सीखता रहूं, और सभी दुनिया, मतलब पूरा संसार जो है वो भी इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। मैं कभी भी प्रश्नों के बारे में ऐसा सोचता नहीं हूँ कि मैं कभी भगवान से कोई प्रश्न करूंगा। इस जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अंत में हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, आपने और हम सब ने सुना है और देखा भी है, बहुत अनबन हो रही है इस दुनिया में, बहुत सारे कंट्रीज में या देशों में बहुत युद्ध चल रही है। छोटे छोटे बच्चों का हत्या हो जा रही है, बच्चों ने कुछ गलती नहीं किया है, छोटे बच्चों का और हमारे भाई बहनों का हत्या हो रही है। तो ये वर्ल्ड लीडर्स जो है आपस में लड़ रहे हैं, पता नहीं किस बात के लिए लड़ रहे हैं, वो तो मुझे अब तक मुझे नहीं मालूम। अंत में हम कुछ भी नहीं लेके जाते हैं, जब इस दुनिया को छोड़ेंगे हम, या हमारे अंत हो जाएगा, हाँ कुछ भी नहीं ले जाएंगे जब हमारे समय आ जाएगा इस धरती को छोड़ने का। तो आप एक अच्छा सा संदेश दीजिए सभी बाहर देश वालों को, या हमारे खुद के भारत में थोड़े लोग जो अनबन के से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम मिस्टर मुकेश कुमार टू ऑल द पीपल टू मेंटेन पीस इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड? मैं तो शुरू से ये मानता रहा हूँ और आगे भी मानता रहूंगा, और भगवान की कृपा से मुझे कभी भी भगवान इस रास्ते से भटकाए ना, कि शांति सबसे ज्यादा जरूरी चीज है दुनिया में रहने के लिए। और जैसे कि आपने कहा कि हमें इस दुनिया से और कुछ भी लेके जाना नहीं है, सिर्फ हमें अपने कर्मों का जो जो हमने यहाँ पर कर्म किए हैं उसका जो फल है वही हमारे साथ जाएगा। वही हमें आगे जाके हमारी हेल्प करेगा कि हमें कहाँ तक जाना है। जैसे लोग कहते हैं कि जन्म जन्मांतर का रिलेशन होता है आत्मा और परमात्मा का। तो मैं सभी लोगों से, सभी लीडर से यही गुजारिश करूंगा कि कृपा करके लोगों को, जो आम लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनको
इसके लिए ना भड़काएं कि हम ये कर देंगे तो इस धर्म के होंगे तो आपको कुछ भी अच्छा मिल जाएगा, या उस धर्म के होंगे तो आप बुरे होंगे। इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। ये सब चीजें इंसान टू मतलब ये इंसान पर्सन टू पर्सन वरी करती हैं कि जो अच्छा इंसान होगा वो अच्छा सोचेगा, जो बुरा होगा वो बुरा सोचेगा। वो किसी भी धर्म का हो सकता है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि हम ये धर्मों का जो बंधन है इसको तोड़ के सिर्फ इंसानियत के नाते एक दूसरे के लिए जो भी अच्छी चीजें हो सकती हैं वो करें। तो हम कभी भी इस तरह की चीजों के बारे में सोचेंगे नहीं कि हमें हमें ये प्राप्त करना है, हमें उस देश पे कब्जा करना है, हमें अपनी जो हमारे दूसरे भाई हैं उनको नुकसान पहुंचाना है। इस तरह का हम कभी भी सोचेंगे नहीं ऐसा। तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम सब लोग इंसान हैं, और हम सब ने के अंदर जो है वर्ल्ड में एक अलग अलग कम्युनिटी के हिसाब से भगवान ने हमें एक देश बना के दिया है। अब आप उसको इंसान ने देश बनाया या भगवान ने बनाया वो तो हम जानते नहीं है। खैर उसको तो उसके उस मुद्दे पे नहीं आएंगे क्योंकि वो बहुत लंबा मैटर हो जाएगा। तो ये आप ये समझ के कि हम अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अ, इस संसार को संभालने में और उसमें इस संसार को संभालने में अपना योगदान किस तरह से दे सकते हैं उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, ना कि उसको बिगाड़ने के बारे में कि हमें इस देश को के ऊपर कब्जा करना है, या इस देश के ऊपर ये करना है, या हिंदू को परेशान करना है, या मुस्लिम भाई को परेशान करना है, या किसी ईसाई भाई को परेशान करना है, या किसी सिख भाई को परेशान करना है। इस तरह की चीजों को छोड़कर हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि इंसानियत किससे आगे बढ़ सकती है, किससे लोगों का भला हो सकता है, वो हमें करना चाहिए। और अगर हम वो करेंगे तो सारी इंसानियत आगे बढ़ेगी, सारी दुनिया आगे बढ़ेगी, और आपस में प्रेम प्यार भी बना रहेगा। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और आखिरी रिक्वेस्ट है आज के लिए। आगे भी आपसे मिलेंगे और बातें करेंगे। विश्व शांति को मायने रखते हुए एक अच्छा सा गाना गा दीजिए हमें। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। यस यस भैया, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू सो मच। तो मन में है विश्वास, होगा शांति चारों ओर एक दिन। एक दिन जरूर शांति होगी सभी के जिंदगी में। वो भी सब मिलजुल कर काम करे तो ही होगा। तो सभी मिलकर हम भारत को और इस विश्व को एक अच्छा जगह बनाएं और सभी प्रेम से और सम्मान से रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम दैट यू शेयर टुडे विद अस मुकेश सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। और मैं भी इस बात से आपकी पूर्णतः सहमत हूँ कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब फिर से इस दुनिया में शांति स्थापित होगी, और कोई किसी के लिए के साथ लड़ने झगड़ने के लिए तैयार नहीं रहेगा। और इस वंडरफुल सेशन के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे मौका दिया दर्शकों के रूबरू होने का और उनसे बातें करने का। तो मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड। धन्यवाद भैया। थैंक यू। So, my dear friends, we end this session now with the main intention of having peace around us in our hearts, in our families, in our country, and in the world. Let's focus on peace and let's encourage the younger generation, the youth, the middle-aged, and senior citizens to derive peace and happiness by networking and connecting with one another and giving importance to music, the right kind of music that could uplift one's spirit
and make one feel that yes, music can transform lives. Like just now, we had a wonderful session with our celebrity guest, Mr. Mukesh Kumar, who shared beautiful songs with us. He shared his passion and talent and his life journey. We'd like to thank him for being here on the International Fab Talks. If you like what the International Fab Talk team is doing, stay connected with us. Like, comment, subscribe, and share this video with the right kind of people. They will be encouraged to transform their lives. We all have beautiful models around us, or role models, to put it right, role models and inspirational figures. And Mr. Mukesh Kumar is one inspirational figure who has really touched the lives of his students and, of course, people like me and you. With this, we'd like to sign off now. Stay connected and stay blessed. Spread peace and joy everywhere. धन्यवाद भाई साहब.